Hello everyone, this is Mamta Moon and today we will learn and solve self-practice exercise questions 1 to 9, self-practice 3G, chapter 3, class 6 of New Learning Composite Mathematics textbook. If you have not subscribed my YouTube channel then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. Let's get started and solve some questions. What we learn today? Today we learn and solve self-practice exercise questions 1 to 9, self-practice 3G. Chapter name is Playing with Numbers and topic is problems based on real life situations involving HCF, highest common factors. Let's solve some questions. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Karisma is making fruit baskets. She has 30 apples, 24 bananas and 12 oranges. What is the maximum number of baskets she would make if each type of fruits is distributed equally among the baskets? क्वेश्चन दिया गया है करिश्मा मेकिंग ए फ्रूट बास्केट. करिश्मा एक फ्रूट बास्केट बनाना चाहती है जहाँ पे 30 एप्पल से 24 बनानाज है एंड 12 ऑरेंजेस है एंड हमको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर of basket that she would make if each type of fruits, सभी टाइप का फ्रूट्स उस बास्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का, 24 का एंड 12 का निकालना है. 30 का और ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मल्टीप्लाइंग द प्राइम नंबर्स, दैट इज 30 इज 2 multiplied by 3, 2 3 is 6, 6 multiplied by 5 is 30. 2, 3 and 5 all are सब ये प्राइम नंबर से. नाउ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 2 is 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 24. 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका 2 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 3. नाउ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 3, that is 2 square multiplied by 3. अभी हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स निकालना है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे 30, 24 एंड 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 2. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2. 3 भी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है. तो 5 इज नॉट ए कॉमन फैक्टर इन 30, 24 एंड 12. तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 एंड 3, that is 6. So maximum number of baskets you would make if each type of fruits is distributed equally among the basket is 6. Maximum number of baskets is 6. So maximum number of baskets you would make if each type of fruits is distributed equally among basket is 6. तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ए गार्डनर हैज 27 tulip bulbs, 45 tomato plants, 99 rose bushes and 117 herbs seedlings to plants in the city garden. He wants each row of the garden to have the same number of each kind of plants. What will be the greatest number of rows that the gardener would make if he used all the plants? यहाँ पे गार्डनर 27 tulip bulbs
45 tomato plants, 99 rose bushes and 170 हॉप सीडिंग्स को अपने गार्डन में प्लांट करना चाहता है, तो वो कैसे, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कैसे वो बनाएगा जिसमें सभी प्लांट्स को वो इक्वली वहाँ पे प्लांट कर सकेगा। दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले हम इसको 27, 45, 99 एंड 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 27 क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 3 क्यूब। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, तो उसका एक्सपोनेंट पावर होगा 3, 3 रेज टू द पावर 3, 3 बेस है और 3 है एक्सपोनेंट। फिर 45 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 5 9 9 9 5 जा 45, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। 99 का क्या होगा, 3 3 9 9 11 जा 99, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11। 117 का क्या होगा, 3 3 जा 9 9 13 जा 17, 9 13 जा that is 3 square multiplied by 13. In prime factorization of 117. He wants each row of the garden to have the same number of each kinds of plants. The greatest highest common factor हमको निकालना है. What will be the greatest number of rows? That is highest common factor of this number 27, 45, 99, 117 का highest common factor क्या होगा? कॉमन फैक्टर 27 में 3 है, यहाँ पे भी 3 3 3 3 3 3 3 और 3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और 3 नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 द हाइस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 3 स्क्वायर। 9 is the common factor, 9 is the highest common factor, that is the greatest number of rows that the gardener would make if he used all the plants is 9, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करने से 110 एंड 128 से उसका रिमाइंडर 2, इन ईच केस उसका रिमाइंडर 2 होगा। तो पहले 110 रिमाइंडर 2, subtracting remainder 2 from 110, that is 108, and 28 minus 2 is 126। अभी 108 and 126 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, दैट इज फर्स्ट फाइंड आउट 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 5 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, that is 2 square 3 cube। 126 का 2 6 जा 10, 2 3 जा 10, 3 2 जा 3 7, 126 का होगा 2 9 7। यहाँ पे एक ही 1 2, यहाँ पे only 1 2, so highest common factor is the smallest number, the power of the smallest number, that is यहाँ पे 2 है तो एक ही 2, राइट डाउन 1 2, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 क्यूब है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखोगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 9 इज
80, यहाँ पे 7 बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इज 80. सो हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा 80. So greatest number which will divide 110 and 128, leaving the remainder 2 in each case is 18. So greatest number dividing 110 and 128, leaving the remainder 2 in each case is 18. So greatest number हुआ 18. अभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide 307 and 330, leaving a remainder 3 and 7 respectively. तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, जिसको डिवाइड करने से 307 और 330 से उसका रिमाइंडर 307 का रिमाइंडर होगा 3 एंड 330 का रिमाइंडर होगा 7. सो सब्ट्रैक्ट करोगे 307 माइनस 3, 304 and 330 minus 7, 327. 307 minus 3 is 304, 330 minus 7 is 323. 323. अभी 304 और 323 का प्राइम फैक्टरेशन दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो पहले उसका प्राइम फैक्टरेशन 304 और 323 का प्राइम फैक्टरेशन होगा 304 का प्राइम फैक्टरेशन है 2, 15, 2 2 2, 7, 6, 38, 2 90, 2 to the power 4 multiplied by 9, 19. और 323 का प्राइम फैक्टरेशन 323 है. 323. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, there is no common factor, so highest common factor 1 होगा. So the greatest number that will divide 307 and 333, leaving a remainder 3 and 7 respectively is 1. So greatest number dividing 307 and 330, leaving remainder 3 and 7 is 1. That is highest common factor, that is greatest number is 1. Highest common factor is 1. अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देयर आर 40 गर्ल्स एंड 32 बॉयज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिले रेस. इफ ईच टीम हैज द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टीम्स दैट कैन रेस? हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इन ईच टीम? 40 गर्ल्स एंड 32 बॉयज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रिले रेस में. वहाँ पे ईच टीम, उनका टीम में सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होना चाहिए. व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, दैट द ऑफ द टीम दैट कैन रेस. ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टीम का निकालना है, दैट इज 40 एंड 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इन ईच टीम? कितना नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स in that team. How many boys and girls will be in each team?
कितने बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच टीम रहेंगे उसको निकालना है. देयर आर 40 गर्ल्स. इट इज 40 और 32 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर. हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 32. सो 40 हाइस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 होगा 2 10. 40 का 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5. 32 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 16 जा 32 2 8 जा 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 2 to the power 5. हाइस्ट कॉमन फैक्टर है 2 क्यूब. यहाँ पे भी 2 क्यूब है तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्यूब. यहाँ पे 2 to the power 5 है दैट इज कॉमन फैक्टर होगा 2 to the power 3. और यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 नहीं है तो 2 क्यूब ओनली द कॉमन फैक्टर बिटवीन 40 एंड 32. सो हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2 क्यूब दैट इज 8. So what will be the greatest number of teams that can race? So greatest number of teams will be 8. Greatest number of teams that can race is 8. How many boys and girls will be in each team? 8 होगा. The number of boys and girls will be in each team is 8. अभी क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. द लेंथ ब्रेथ एंड height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter respectively. Determine the longest step that which can measure the three dimension of the room exactly. 8 meter 25 centimeter, that is 825 centimeter. 6 meter 75 centimeter is 675 cm. 4 meter 50 centimeter is 450 centimeter. Determine the longest stroke, that is highest common factor निकालना है जिसको measure which can measure the three dimension of the room. Highest common factor of 825 675 और 450 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना जिस दैट इज द मेजर ऑफ थ्री डायमेंशन ऑफ द रूम. उसको मेजर होगा डायमेंशन एग्जैक्टली दैट इज इक्वल नंबर ऑफ टाइम that will be the longest step. Highest common factor of 825 675 और 450 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट स्टेप ऑफ दैट रूम that will measure the dimension of the room. Eight hundred 25 division using the longest division method. 675. 675 का 675 5 1 then 675. Now 150 the divisor, that is the remainder will be division, and 675 जो डिविजर था वो हो जाएगा डिविजन. तो 4 600 अभी 75 रिमाइंडर हुआ तो अभी 75 डिविजन हो जाएगा और 150 ये रिमाइंडर ये डिविडेंड होगा. 75 टू जा 150 तो 75 होगा हाइस्ट कॉमन फैक्टर.
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 75. 75 का फिर अभी 450 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. 825 और 675 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 75. अभी 450 एंड 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. नाउ 450 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 75 4 6 6 आई थिंक 6 6 5 जा 30 6 7 जा 42 45. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 450 75 हुआ 75. So highest common factor of 825 675 and 70 450 450 is 75. So longest step that can measure the 3 dimension of the room exactly is 75 centimeter. 75 longest step measuring room is 75 centimeter. So longest step that can measure the 3 dimension of the room exactly is 75 centimeter. अभी क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. A rectangular courtyard is 20 meter 16 centimeter long and 15 meter 60 centimeter broad. It is to be paved with stones of the same size. Find the least possible number of such stones. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है. This is rectangular courtyard that is 20 meter 16 centimeter long. That is 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लेंथ है इसका. तो ये भी लेंथ होगा सेम 20 16 सेंटीमीटर. और ब्रेड है ब्रॉड है दैट इज 15 मीटर 60 सेंटीमीटर. ये भी 15 मीटर 60 सेंटीमीटर. दिस टू बी पेव्ड विथ स्टोन्स. यहाँ पे स्टोन में पेव्ड इसको कोर्टयार्ड को स्टोन में भरना है और विद द सेम साइज. स्टोन होगा सेम साइज का. यहाँ पे कोर्टयार्ड में भरना है दो. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स. तो स्टोन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस लेंथ एंड ब्रेथ का हमको निकालना है. दैट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स. दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स. So highest common factor of 20 meter 16 centimeter will be 2016 centimeter and 15 meter 60 centimeter will be 1560 centimeter. 20 16. तो लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड हमको अप्लाई करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 2016 और 1560 बिकॉज दीज आर टू ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज बिगर नंबर. सो यूज द ग्रेट longest division method. Long division method 1560 1 1560 6 5 9 5 4 1560.
456 में क्या होगा? 456, 353, 368, तो 3, 368, 2, 456, 192 मल्टीप्लाई इसको क्या होगा? 703, 6, 57, 2, 456 डिवीजन ऑफ 192 का होगा 2, 2 2 जा 4, 38, 2, 58, 7, 7 होगा 192, 2, 8, 8 होगा फिर यहाँ पे 4, तो 48, 72, कितना बड़ा उसका हो रहा है डिवीजन मेथड में। दैट इज अभी 42 रिमाइंडर हुआ और 72 डिवीजर है, तो अभी 48 होगा डिवीजर प्लस 72 होगा डिविडेंड। 1, 48, 4, 6, 4, 2, 48, 24 2 जा 48, 0, सो हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा 24, अभी 24 सेंटीमीटर। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर 2016 और 2016 एंड 1560 का होगा 24 सेंटीमीटर। So least possible number of such stones will be 24 centimeter. अभी क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Which greatest number will divide 3026 and 5053 leaving the remainder 11 and 13 respectively? तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर उसको डिवाइड करेंगे करने से 3026 एंड 5053 से, तो उसका रिमाइंडर 3026 का रिमाइंडर 11 होगा एंड 5053 का रिमाइंडर होगा 13। दैट ग्रेटेस्ट नंबर, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3026 माइनस 11 एंड 5053 माइनस 13। Use the long division method 5040 and 3050. 1,
3050 1 9 9 19 8 4 35 अभी 45 रिमाइंडर निकला तो अभी 45 हो जाएगा डिविजर एंड 990 होगा डिविडेंड। तो 990 है डिविडेंड और 45 है डिवीजन, तो उसको डिवाइड करने से 45 टू जा 90 9 and 45 टू जा 90. So 45 is the highest common factor, that is the greatest number. So highest common factor of 3015 and 5040 का हुआ 45. So greatest number that will divide 3026 and 5053, leaving the remainder 11 and 13 respectively, is 45. So greatest number that will divide 3026 and 5053, leaving the remainder 11 and 13 respectively is 45. So greatest number that will divide 3026 and 5053, leaving the remainder 11 and 13 respectively, is 45. Now अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. There are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas, and they have to be arranged in such a way that each row contains same number of fruits of only one type. In each row एक ही नंबर का प्लांट होगा, ट्रीज होगा. दैट इज यहाँ पे अगर पीच प्लांट है तो यहाँ पे एप्रिकॉट होगा और यहाँ पे बनानाज होगा. तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, पीच और यहाँ पे रिपीट नहीं होगा. सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू अरेंज द फ्रूट्स. तो कितना रोज यहाँ पे, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कितना नंबर ऑफ रोज यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे तो इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ईच वन टाइप ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स वहाँ पे प्लांट करेंगे, प्लांट होगा. तो देयर आर 24 पीचेस. तो HCF ऑफ 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas. They have to be arranged in such a way that each row contains same number of fruits. यहाँ पे अगर एक ही फ्रूट टू पीच होगा तो 2 होगा, यहाँ पे 3 पीचेस है तो 3 होगा. इसी तरह सेम नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स, एक ही ईच रोज में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स प्लांट्स प्लांट होगा.
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 36, 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 60 डिवाइड 36, 36 1 36 4 2 and 36, 24 1 24 2 1 24 12 2 24 तो 12 है HCF ऑफ 60 एंड 33 का 12 HCF ऑफ 12 60 and 36 is 12. अभी HCF 24 और 12 का HCF निकालना है। ये 60 एंड 36 का HCF हुआ 12, 36 एंड 60 का HCF हुआ 12। अभी हमको 24 HCF 24 और 12 का HCF निकालना है। HCF ऑफ 24 and 12 this 12. So 24 division of 12 is 12 2 is 24. That is 12 is the highest common factor. So highest common factor of 24 and 12 is 12. So whole three numbers का highest common factor क्या हुआ? HCF of 24, 36 and 60 का highest common factor होगा that is same 12, that is 12. So minimum number of rows required to arrange the fruits will be 12. So number of rows, that is minimum number of rows 12 rows plant करना पड़ेगा जहाँ पे each type of fruit plants वहाँ पे plant होगा. Same number of fruit plants वहाँ पे plant होगा. So number of rows will be 12. So minimum number of rows required to arrange the fruits is 12. So highest common factor हुआ 12. So minimum number of rows plant करना पड़ेगा 12. If you like this video, then please click the like button and share this with your friends. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this with your friends. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please